Assalamu alaikum. This is Iman Nahid, roll number 16 from group 7. As you can see on your screen that our topics for today are amino acid metabolism, biosynthesis and catabolism of heme. But first of all, let me introduce you all my group members: Momina Atiq, Huma Rahman, Numan Hussain, Zulkifil Sultan and Usama Khalil. First of all, we should know what is amino acid metabolism. Amino acid metabolism requires transamination as the first step, generating glutamate and alanine as the major products, followed by oxidative deamination of glutamate with glutamate dehydrogenase to form nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase, which is converted to ATP. This is followed by the basic terms essential amino acids and non-essential amino acids. Non-essential amino acids can be made by the body, while essential amino acids cannot be made by the body, so you must get them from your diet. Some examples of non-essential amino acids are glutamate, glutamine, glycine, proline, etc. While essential amino acid examples are arginine, histidine, isoleucine. So next is how can we synthesize glutamate. Glutamate can be synthesized by two different reaction pathways. In one reaction, glutamate is synthesized by the reductive amination of 2-oxoglutarate, alpha-ketoglutarate, catalyzed by glutamate dehydrogenase. It is a nitrogen incorporating reaction. Means 2-oxoglutarate जिसे हम alpha-ketoglutarate भी कहते हैं, in the presence of glutamate dehydrogenase कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, और इसमें एक प्रोसेस हो रहा है जिसे हम कहते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन. In the second type of reaction, glutamate is formed from 2-oxoglutarate by aminotransferase reaction, with the amino nitrogen being donated by a number of different amino acids. Then moving towards the next slide, there is glutamate synthesis reaction. In this reaction, an enzyme is used which is called glutamate dehydrogenase. It is actually a hexameric enzyme that catalyzes the reversible conversion of glutamate to alpha-ketoglutarate and ammonia while reducing NADP positive to NADPH. एक्चुअली हम लोगों ने जो पिछली स्लाइड में बात की उसी चीज़ को इधर डिस्क्राइब किया हुआ है कि 2-oxoglutarate इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में, और इधर एक प्रोसेस हो रहा है जो मैंने पिछली स्लाइड में भी बात की रिडक्टिव अमाइनेशन का, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामेट. Glutamate is formed by the reductive amination of 2-oxoglutarate. First, we should know what is reductive amination. Reductive amination is a type of amination reaction in which conversion of carbonyl group to amine takes place via amine intermediate formation. Means कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप टू अमाइन होती है रिडक्टिव अमाइनेशन में. अगर हम इस रिएक्शन पे गौर करें तो 2-oxoglutarate पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो रहा है अमाइन में इन ग्लूटामेट, और इस दौरान एक इंटरमीडिएट बन रहा है जिसे हम 2-immunoglutarate कहते हैं. सो नेक्स्ट इज हाउ कैन वी सिंथेसिस ग्लूटामीन. Glutamate is converted into glutamine by glutamine synthetase in skeletal muscles, lungs, adipose tissue and liver. In this reaction, an intermediate is formed which is called glutamyl phosphate. Glutamine is a precursor for a number of biosynthetic pathways required for growth and cell division. Before we should discuss another thing, we should know about the basic term glutamine. It is actually a hydrophilic amino acid which is a constituent of most proteins. Its side chain is similar to that of glutamic acid, except the carboxylic acid group is replaced by an amide. Its level in the blood are in the range of 500. Glutamine represents a major contributor to the energy needs of cells as a major molecule for movement of ammonia in a non-toxic form. उसके अलावा ये यूज़ होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में. ग्लूकोनियोजेनेसिस आपको पता होनी चाहिए क्या होती है. ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस शुगर, नेमली ग्लूकोज, फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स. ग्लूकोज इज़ द ओनली एनर्जी सोर्स यूज्ड बाय द ब्रेन. नेक्स्ट यूज़ होती है हेक्सोसामीन बायोसिंथेटिक पाथवे में यूडीपी बनाने के लिए. यूडीपी होता है क्या? यूडीपी यूरिडीन डाई phosphate and acetyl glucosamine. Thank you. I will take it from here. इस डायग्राम में आपको ग्लूटामाइन को यूटिलाइज करने वाले डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज नज़र आ रहे हैं. सबसे पहले हम ग्लूटामाइन की एंट्रेंस से स्टार्ट करते हैं और एक मैनर में इन सब मेटाबॉलिक पाथवेज को डिस्कस करते हैं. अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर SLC1A5 के जरिए ग्लूटामाइन सेल के अंदर एंटर होगा. सिस्टोल में ग्लूटामाइन और एस्पर्टेट कंबाइन करेंगे थ्रू एस्परगीन सिंथेस टू फॉर्म एस्परगीन ग्लूटामेट, जबकि यहाँ पर हेक्सोएजामाइन बायोसिंथेसिस पाथवे में
यूडीपी न्यूक्लियोटाइड शुगर की सिंथेसिस के लिए यही साइटोसोलिक ग्लूटामाइन एज अ सबस्ट्रेट रिक्वायर्ड होता है। सो दूसरी तरफ देखें तो ग्लूटामाइन जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा ग्लूटामिनेस एंजाइम के ज़रिए सिस्टोल के अंदर, और विद इन सिस्टोल ही ये ग्लूटामेट ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के ज़रिए 2-ऑक्सोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा। कैंसर सेल में सिस्टोलिक IDH1 यानी आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस 1 इनकोडिंग एंजाइम, उसके ज़रिए ये 2-ऑक्सोग्लूटारेट जो है आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा फर्दर। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में देखें तो यही ग्लूटामाइन माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ग्लूटामेट में भी कन्वर्ट होगा ग्लूटामिनेज एंजाइम 2 के ज़रिए विद द रिलीज ऑफ अमोनिया यानी डीएमिनेशन रिएक्शन में। सो यही ग्लूटामेट फर्दर फिर ग्लूटाथाइओन बनेगा जो कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट इस सेल में सर्व करेगा। ग्लूटामेट फिर अमोनिया की रिलीज़ के साथ 2-ऑक्सोग्लूटारेट में कन्वर्ट होगा एक एंजाइम के ज़रिए जिसे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं। फिर फर्दर ये 2-ऑक्सोग्लूटारेट जो है IDH2 के ज़रिए आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा और अगेन वो आइसोसिट्रेट जो है वो तीसरे साइकिल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तीसरे साइकिल का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो एस्पर्टेट में कन्वर्ट हो रहा है जो कि फर्दर न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस रिएक्शंस हैं उनमें यूज़ होता है। इसी साइकिल से जो मालेट है वो साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होगा और मालिक एंजाइम ME1 के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि लेटर फैटी एसिड और न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस रिएक्शंस में यूज्ड होगा। सेकेंडली इसी साइकिल का जो सिट्रेट है वो साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होके COA और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा एंड एज यू नो एसिटाइल COA एज अ प्रिकर्सर सर्व करेगा फैटी एसिड सिंथेसिस में, जबकि यही एसिटाइल COA कैंसर सेल्स की रैपिड सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। अब बात करते हैं ग्लूटामाइन के एक जिक्र की जिसमें LAT1 एक एंटीकोटर के एक्शन के थ्रू सेल से बाहर और लियोसाइन को सेल के अंदर एंटर किया जाएगा। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया जाएगा और अगर लियोसाइन का इंटरसेलुलर लेवल इंक्रीज हो जाए तो mTORC1 एक काइनेस एंजाइम है जो कि एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो इस सेल की अपॉप्टोसिस को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया का ग्लूटामेट है वो प्रोलाइन, एलानाइन और एस्पर्टेट की फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एस्पर्टेट और एस्परागिन की। दोनों ही अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं। एस्पर्टेट फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन और सेकंड वन है डीएमिनेशन ऑफ एस्परागिन। सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। जनरली किसी अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का कीटो एसिड को ट्रांसफ़र होना ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक अमीनो एसिड और एक डिफरेंट कीटो एसिड बनता है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीज ऑफ अमीनो ग्रुप, हम अमीनो ग्रुप के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं कीटो एसिड के साथ। सो इस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में 4 पॉइंट्स हैं दैट यू गाइस हैव टू मेमोराइज। फर्स्ट ये है कि एस्पारेट ट्रांसएमिनेस एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा। सेकंड ऑक्सैलो एसिटेट जो कि अल्फा कीटो एसिड है वो एक अमीनो ग्रुप अमीनो एक्सेप्टर के तौर पर परफॉर्म करेगा, जबकि ग्लूटामेट प्राइमरी अमीनो ग्रुप डोनर होगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेस एंजाइम के बारे में है कि इसकी लोकेशन जो है वो साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मोस्ट ऑफ सेल्स में, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में अभी डिस्कस किया। अब आते हैं रिएक्शन की तरफ। ग्लूटामेट अल्फा अमीनो एसिड जो है उस पर जो अमीनो ग्रुप को हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है वो ट्रांसफ़र होगा ऑक्सैलो एसिटेट की तरफ AST कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो कि है एस्पर्टेट ट्रांसएमिनेस। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में एक डिफरेंट अमीनो एसिड और एक डिफरेंट कीटो एसिड बनेगा। जो अमीनो एसिड बनेगा वो है फाइनली एस्पर्टेट। नेक्स्ट स्लाइड में वी गॉट 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हियर, लियोसाइन, आइसोलियोसाइन और वेलाइन। इनको याद रखने के लिए जो फॉर्मूला है वो है VIL विल। ये तीनों ही नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं और एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, सो दे हैव टू बी ऑब्टेन्ड इन द डाइट। इनके भी 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये तीनों ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स हैं और सेकंड वन इनका कैटाबॉलिज्म रेट स्केलेटल मसल्स में हाईएस्ट होता है और थर्ड वन जो ये रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है कि इन ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में जो FADH2 और NADH प्रोड्यूस होते हैं वो लेटर ATP की जनरेशन के लिए यूटिलाइज होते हैं। सो इसीलिए ये क्योंकि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो इनकी जो ज़रूरत है वो स्केलेटल मसल्स में ज़्यादा है। इंटरेस्टिंगली कैटाबॉलिज्म रिएक्शन के पहले 2 स्टेप्स में ये तीनों अमीनो एसिड सेम एंजाइम यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में अमीनो ट्रांसफरेज जो कि ब्रांच चेन एंजाइम है वो कॉमन है, जबकि सेकंड स्टेप में ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो मौजूद होता है
So the other things written here on this slide are easy to explain from the next one. इस रिएक्शन में 2-ऑक्सोग्लूटारेट यानी अल्फा कीटोग्लूटारेट एज एन अमाइन एक्सेप्टर रोल प्ले करेगा। फर्स्ट स्टेप ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है, सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू द प्रीवियस रिएक्शन, यानी यहाँ पर आइसोल्यूसाइन एक अमाइनो एसिड, जबकि जो सेकंड वन है ऑक्सोग्लूटारेट वो एक कीटो एसिड के तौर पर रोल प्ले करेगा। सो अमाइनो ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट में हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड यानी ग्लूटामेट और एक कीटो एसिड यानी कि अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वोलेरेट बनेगा। सो नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसके प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में है। यहाँ पे कोएंजाइम ए जो है वो BCKD एंजाइम के साथ यूज़ होगा। BCKD मतलब ब्रांच्ड चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस, और अल्फ़ा कीटो बीटा जो मिथाइल वोलेरेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल CoA थायोईस्टर में, यानी अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाइल CoA में, यानी प्रोडक्ट में हमें CO2 NADH और एक प्रोटॉन भी मिलेगा। इसके बाद डिग्रेडेशन पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एंजाइम SBCAD शॉर्ट ब्रांच चेन असाइल CoA डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम यूज़ होगा, जो कि FADH2 को भी प्रोड्यूस करेगा, FAD को FADH2 में कन्वर्ट करेगा। सो इसी तरह ये SBCAD एंजाइम FAD को FADH2 में कन्वर्ट करेगा और ये रिएक्शन प्रोसीड करता हुआ इन्हीं इंटरमीडिएट्स के थ्रू फाइनल प्रोडक्ट देगा एसिटाइल CoA और प्रोपियोनाइल CoA। लियोसाइन और वेलाइन का कैटाबॉलिक रिएक्शन मेथड भी इससे सिमिलर है। सो दैट्स ऑल। नाउ माय कोलीग नुमान हुसैन विल लेट अस नो अबाउट द फिनाइल एलानाइन एंड टायरोसिन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन कैटाबॉलिज्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक लार्जर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक स्मॉलर मॉलिक्यूल, एक या एक से ज़्यादा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। अब यहाँ पे जो फिनाइल एलानिन है और टायरोसिन है इनकी कैटाबॉलिज्म होगी और वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लें। तो सबसे पहले ये है कि फिनाइल एलानिन है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है और जो टायरोसिन है वो नॉन एसेंशियल है। अभी कुछ देर पहले रोल नंबर 16 ने बताया था कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। एसेंशियल वो होंगे जो हमारी बॉडी डाइट के ज़रिए लेती है और नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो फिनाइल एलानिन और टायरोसिन ये स्ट्रक्चरली रिलेट करते हैं एक दूसरे से, जैसा कि दोनों ही एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। जो फिनाइल एलानिन है इसकी 2 फेट्स हैं। एक तो ये है कि ये इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन्स ये है, और दूसरा है हाइड्रोक्सिलेशन टू टायरोसिन। ये जब हम आगे स्टेप्स अभी स्टडी करेंगे तो उनमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंस भी है, यानी कि इंटरमीडिएट और जो इनके एंड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हम अभी देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि जो फिनाइल एलानिन है ये कन्वर्ट होता है पहले टायरोसिन, और जो डिग्रेडेशन ऑफ फिनाइल एलानिन है वो टायरोसिन के ज़रिए हो रही है, यानी कि उसका जो फिनाइल एलानिन है वो उससे बन रहा है टायरोसिन। तो अभी हम स्टडी करते हैं इसकी डायग्राम्स। तो इसमें जो सारों से पहला पॉइंट है उसमें यह है कि फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हाइड्रोक्सिलेशन का हो रहा है, और जो एंजाइम है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये हमारे पास एंजाइम है, ये एक्ट करता है और ये फिनाइल एलानिन जो कि हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है उसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन जो हमारे पास नॉन एसेंशियल है। टायरोसिन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं डायग्राम में गिवन है। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो टायरोसिन है वो कन्वर्ट होगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, और यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो है ट्रांसएमिनेशन का, और जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो टायरोसिन ट्रांसएमिनेज है। यहाँ पे इस दौरान ही जो 2-ऑक्सो ग्लूट्रेट है वो कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट के अंदर।
यानी कि सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, टायरोसिन कन्वर्ट किया है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट, ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हुआ है और ट्रांसएमिनेशन का प्रोसेस हुआ है। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, उसमें जो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट है जो हमारे पास ऊपर वाले स्टेप में बना था, वो कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसेट के अंदर। और यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो एक तो डीकार्बोक्सिलेशन का हो रहा है और दूसरा जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन का हो रहा है। अब यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा है वो HPD, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डी ऑक्सीजनेज, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास होमोजेंटिसेट है वो कन्वर्ट होगा 4 मिलाइल एसीटोएसीटेट के अंदर। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम एक्ट कर रहा है वो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज है और इस दौरान ये ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है इस रिएक्शन के अंदर। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 मिलाइल एसीटोएसीटेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और एंजाइम जो है हमारे पास वो होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज है। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो 4 मिलाइल एसीटोएसीटेट बना है वो आइसोमेराइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट होगा 4 फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट। और इस दौरान जो हमारे पास एंजाइम एक्ट कर रहा है वो है मिलाइल एसीटोएसीटेट आइसोमेरेज। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है उसके अंदर 4 फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट है वो कन्वर्ट होगा फ्यूमेरेट और एसीटोएसीटेट। ये हमारे पास दो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, एक फ्यूमेरेट है दूसरा एसीटोएसीटेट है। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस का हो रहा है और जो हमारे पास एंजाइम एक्ट कर रहा है वो फ्यूमेराइल एसीटोएसीटेट हाइड्रोडेज, ये एंजाइम है जो एक्ट कर रहा है। अब जो हमने पहले बात की कि फ्यूमेरेट और एसीटोएसीटेट जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो फ्यूमेरेट है वो काम करता है एज अ इंटरमीडिएट क्रेब्स साइकिल के अंदर और इसके अलावा ये काम करता है प्रीकर्सर एज अ प्रीकर्सर ग्लूकोजेनेसिस के अंदर। उसके बाद जो एसीटोएसीटेट जो हमारे पास दूसरा फाइनल प्रोडक्ट है वो यूज्ड होता है फैट सिंथेसिस के अंदर। I'm Momin Atiq and my topic is biosynthesis and catabolism of heme and porphyrin compounds. सबसे पहले हम हीम और पोर्फिरिन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। हीम जो है वो बेसिकली आयरन होल्डिंग पोर्फिरिन कंपाउंड ही है। ये बेसिकली पोर्फिरिन का ही डेरिवेटिव है। पोर्फिरिन कंपाउंड्स जो हैं इनके अंदर 4 पायरोल रिंग्स होते हैं। ये 4 पायरोल रिंग्स एक दूसरे से मीथेन ब्रिजेस से अटैच होते हैं, यानी इनके जो अल्फा कार्बन्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर हम इन 4 पायरोल रिंग्स के दरमियान में एक सेंट्रल आयरन एटम ऐड कर दें तो ये हमारे पास हीम कंपाउंड बन जाएगा। अब हमने इन हीम कंपाउंड्स और इन पोर्फिरिन कंपाउंड्स की सेल के अंदर सिंथेसिस और कैटाबोलिज्म यानी इनकी ब्रेकडाउन को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हीम स्ट्रक्चर की। हीम इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B6। हीम की सिंथेसिस के बारे में बताया गया है सबसे पहले कि सेल के अंदर ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए विटामिन B6 की प्रेजेंस में ये दोनों एक्ट करते हैं और इन दोनों की रिएक्शन से हमें एंड प्रोडक्ट मिलती है हीम। ये एक कंप्लीट प्रॉपर पाथवे होता है, इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इनसे हमें हीम मिलती है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है और सक्सिनाइल कोए एक थायोल एस्टर कंपाउंड होता है। ये जो पाथवे होता है हीम की सिंथेसिस का, ये हाफ साइटोप्लाज्म में होता है और हाफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देन द मोस्ट अबंडेंट हीम कंटेनिंग प्रोटीन इज हीमोग्लोबिन। सबसे ज़्यादा हीम जो है वो हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हीम पार्ट होता है, ग्लोबिन पार्ट होता है। जो हीम पार्ट है उसके ये आयरन कंटेनिंग होता है और जो ग्लोबुलिन पार्ट है ये प्रोटीन पार्ट होता है। Mature RBCs have no mitochondria, no TCA cycle and its enzymes। जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी पहला तो उनका न्यूक्लियस ख़त्म कर दिया जाता है, फिर उनका माइटोकॉन्ड्रिया भी ख़त्म कर दिया जाता है और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उसके अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शन और पाथवे हैं वो भी नहीं होंगे। जैसे TCA साइकिल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इसी तरह जो TCA साइकिल को ही क्रेब्स साइकिल कहा जाता है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है।
तो जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो इसके अंदर जितने भी पाथवेज और रिएक्शंस हैं वो भी नहीं होंगे, और डेफिनेटली इसके एंजाइम्स भी नहीं होंगे फिर। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म करने की दो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न ये है कि ये जो आरबीसीज होते हैं इनमें ऑक्सीजन कैरिंग इनकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, इनमें ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए स्पेस बन जाती है। और दूसरी रीज़न ये कि ऑक्सीजन फिर ये सेल खुद यूज़ नहीं करता, ये सिर्फ कैरी करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल की ऑक्सीजन यूज़ करके उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम ख़त्म कर देंगे तो इस तरह ऑक्सीजन की जो यूसेज है सेल के लिए वो भी कम हो जाएगी और वो ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। दैन ग्लाइकोलिसिस एंड एचएमपी शंट प्रोवाइड्स एनर्जी टू आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स का जब माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म कर दिया जाता है तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? पहला तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, वो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बना के देता है। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म कर दिया जाता है तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल को एनर्जी मिलती है ग्लाइकोलिसिस और एचएमपी शंट पाथवे से। ये दोनों पाथवेज जो ग्लाइकोलिसिस और एचएमपी हैं ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। एचएमपी पाथवे है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे, ये इसका दूसरा नाम है पेंटोस फॉस्फेट शंट पाथवे। ये दोनों फिर आरबीसीज को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। RBCs after 120 days are broken down to heme and globin. रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनकी मैक्सिमम लाइफ 120 डेज होती है, इसके बाद इसको हीमोलाइसिस से ख़त्म कर दिया जाता है। जब इनकी हीमोलाइसिस होती है तो उससे इनमें मौजूद जो हीमोग्लोबिन है उसकी भी ब्रेक डाउन होती है। तो हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। जो हीम है वो आयरन कंटेनिंग पार्ट है और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट होता है। हीम आफ्टर रिलीज ऑफ आयरन इज कैटाबोलाइज टू बिलीरुबिन। हीम की जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे बिलीरुबिन वेस्ट बनता है जिसको हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। और जो ग्लोबिन है प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट, उसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो उससे अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। इन अमाइनो एसिड्स को हम प्लाज्मा अमाइनो एसिड्स पूल में ऐड कर दिए जाते हैं और ये बॉडी को रिटर्न कर दिए जाते हैं जिससे न्यू आरबीसीज और हीमोग्लोबिन बन सके। हीम इज़ द डेरिवेटिव ऑफ पॉर्फिरिन। जो पॉर्फिरिन है उसी का डेरिवेटिव हीम होता है एक्चुअली। पॉर्फिरिन के अंदर जब एक सेंट्रल आयरन एटम ऐड कर दिया जाता है तो उससे ये हीम कंपाउंड बन जाता है। सिंस एन आयरन एटम इज प्रेजेंट इन द सेंटर इट इज कॉल्ड फेरोप्रोटोपॉर्फिरिन। यही के पॉर्फिरिन के अंदर जब एक हम आयरन एटम ऐड कर देते हैं तो उससे ये फेरोप्रोटोपॉर्फिरिन बन जाता है। Porphyrin consists of four pyrrole rings united by methynyl bridges. Porphyrin के अंदर चार पायरोल रिंग्स होते हैं जो कि चारों आपस में अल्फ़ा कार्बन से कनेक्टेड होते हैं। इनके अल्फ़ा कार्बन ने एक दूसरे से बॉन्ड बनाया हुआ होता है और ये CH बॉन्ड्स होते हैं यूनाइटेड बाय मिथाइल ब्रिजेस। इनको मिथाइल ब्रिजेस कहते हैं। दीज पायरोल रिंग्स आर नंबर्ड 1 2 3 4। ये जो चार पायरोल रिंग्स हैं इनको हमने रोमन काउंटिंग में नेम किया हुआ है 1 2 3 4। एंड ब्रिजेस आर अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। और जो चार ब्रिजेस हैं यानी जहाँ पे अल्फ़ा कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इनको अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा नेम किया हुआ है। द आयरन एटम इन द सेंटर ऑफ पॉर्फिरिन इज हेक्सावेलेंट। जो पॉर्फिरिन में चार पायरोल रिंग्स हैं इनके सेंटर में आयरन एटम है उसकी वो हेक्सावेलेंट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यानी वो 6 आइटम्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। एंड बॉन्डी टू 4 पायरोल नाइट्रोजन बाय कोऑर्डिनेट वैलेंसीज। ये चार पायरोल रिंग्स के चार नाइट्रोजन्स के साथ बॉन्डेड होता है, उसके साथ इसने बॉन्डिंग की होती है। The double bonds are resonating and therefore keep shifting their position. ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये रेजोनेटिंग होते हैं। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड्स हैं ये इसमें डीलोकलाइजेशन होती है इसके इलेक्ट्रॉन्स में और इसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये लोकलाइज नहीं होते और ये रेजोनेंस यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे जो आयरन है इसकी वैलेंसी +6 थी तो चार जो थी इसने बॉन्डिंग की है चार नाइट्रोजन के साथ और स्टिल इस पे +2 चार्ज है, यानी कि इसका ये जो +2 चार्ज है ये ऑक्सीजन के बाइंडिंग की वजह बनता है। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करती है इस +2 चार्ज की वजह से। तो इस तरह क्योंकि ये हीम पार्ट है तो ये आयरन कंटेनिंग पार्ट है, यहाँ पे आयरन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और वो ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। When ferrous ion in heme gets oxidized to ferric, hematine is formed.
जो पॉर्फिरिन रिंग में सेंट्रल आयरन एटम है उसकी वैलेंसी हमारे पास है +2। अगर वो फेरस आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए और फेरिक आयन बन जाए, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाए, +3 हो जाए, तो हीमैटिन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी वो हीम नहीं रहता, वो देन हीमैटिन बन जाता है और ये इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। यानी उसकी अगर वो हीम है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +2 है तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है, लेकिन अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो रही है और वो हीमैटिन बन रहा है तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत कम हो जाती है। हीम इज़ रेड इन कलर बट हीमैटिन इज़ डार्क ब्राउन। हीम जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा तो इसका कलर जो है वो रेड होगा, ब्राइट रेड, लेकिन जब इसमें जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हीमैटिन बन जाएगा ये, तो इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा। नेक्स्ट हीम का उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इनमें 4 पायरोल रिंग्स हमें 4 कॉर्नर्स पे नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आर पॉइंट्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर 4 पायरोल रिंग्स नज़र आ रहे हैं। इन पायरोल रिंग्स के कॉर्नर्स को नेम किया गया है बाय 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, पर ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने लेबल किया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इन पॉइंट्स पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब भी किसी सब्स्टिट्यूएंट ने यहाँ पे अटैच होना है तो यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह वो जो दूसरा ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रोपेनाइल, एसिटाइल, मिथाइल एंड विनाइल ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट्स को बताया गया है, उनको नेम किया गया है कि यूजुअली प्रोपेनाइल, एसिटाइल और मिथाइल विनाइल ग्रुप्स होते हैं जो यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के अटैच होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा आर द मिथाइलिन ब्रिजेस derived from alpha carbon of glycine link the 4 pyrrole rings of the heme। जैसे कि पहले बताया कि 4 पायरोल रिंग्स आपस में इनके अल्फा कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जो अल्फा कार्बन हमें नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से अटैच हुए हुए, ये अल्फा कार्बन होते हैं ग्लाइसिन के। ग्लाइसिन जब इसकी सिंथेसिस हमने बताई तो इसकी सिंथेसिस जो है हीम की उसमें ग्लाइसिन और सक्सिनाइल कोए पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ जो अल्फ़ा कार्बन जिससे चारों पायरोल रिंग्स एक दूसरे से अटैच हैं वो अल्फ़ा कार्बन ग्लाइसिन से लिया गया था। देन बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉर्फिरिन्स। यहाँ एक तरफ पॉर्फिरिन्स की लिस्ट है और दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स की उनको नेम किया गया है। पहला है यूरो पॉर्फिरिन 1। इसके सब्स्टिट्यूएंट्स में ए और पी ही पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एसिटाइल एंड प्रोपियोनाइल। देन यूरो पॉर्फिरिन 3 है, उसका भी ए पी और पी ए, यानी एसिटाइल और प्रोपियोनाइल ही पार्टिसिपेट करते हैं। फिर है को प्रो पॉर्फिरिन 1, एम पी हैं इसके, यानी मिथाइल एंड प्रोपियोनाइल। देन को प्रो पॉर्फिरिन 3, इसमें भी एम पी एंड पी एम है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी मिथाइल और प्रोपियोनाइल। देन प्रोटो पॉर्फिरिन 3 है 9, जिसमें एम वी एम पी एंड पी एम है, यानी इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसमें करते हैं मिथाइल, फिनाइल और प्रोपियोनाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट्स और पॉर्फिरिन्स की लिस्ट थी। और आगे उन्होंने जर्नल स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है राइट पे पॉर्फिरिन रिंग का। तो ये था हीम का स्ट्रक्चर। अब हम आपको बताएंगी हीम की बायोसिंथेसिस। So heme biosynthesis. Heme can be synthesized by almost all tissues and hence for sure synthesize heme in the lab. So इसके 7 स्टेप्स हैं हीम बायोसिंथेसिस के। जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड बाय ELA सिंथेसिस। तो इसके फॉर्मेशन में हमारे पास ग्लाइसिन होता है और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है। जब ये कंडेंस होंगे तो हमारे पास बनेगा ALA, डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड। और जो एंजाइम इसमें यूज़ हो रहा है ना वो है ALA सिंथेसेस, और जो कोएंजाइम यूज़ हो रहा है वो है PLP पायराडॉक्सिल फॉस्फेट। और इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है ना जो वो निकल जाएगी, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा।
और जो कोएंजाइम ए है और सल्फा हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये भी रिलीज हो जाएंगे। और ना जो फर्स्ट स्टेप है ना उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है, और जो बाकी जितने भी हमारे पास स्टेप्स हैं वो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट। और ये कि ये रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। आगे जो स्टेप 2 है वो है फॉर्मेशन ऑफ पोर्फोबिलिनोजन बाय पीबीजी सिंथेसिस। इसमें हमारे पास मज़ीद कंडेंसेशन होगी, 2 डेल्टा ALA आएंगे, कंडेंस होंगे और पोर्फोबिलिनोजन बन जाएगा। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है ALA डिहाइड्रेटेज, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से भी रिलीज हो जाएंगे। और जो PBG है ना वो मोनोपायरल है, और PBG की जो कॉमन प्रिकर्सर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो नेचुरल टेट्रापायरोल जिसमें हीम आता है, क्लोरोफिल आता है और विटामिन B12 आता है, ये है। और स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ यूरोपोर्फिरिनोजन बाय PBG डीअमाइनेज। तो इसमें हमारे पास 4 पोर्फोबिलिनोजन हैं हमारे पास, तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं इसमें से वो रिलीज़ हो जाएंगे। और जो एंजाइम इसमें यूज़ हो रहा है वो है यूरोपोर्फिरिनोजन 1 सिंथेसिस, और फिर ये यूरोपोर्फिरिनोजन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4 सिंथेसिस ऑफ कोपोर्फिरिनोजन 3। इसमें फिर यूरोपोर्फिरिनोजन 3 ने कन्वर्ट हो जाना है कोपोर्फिरिनोजन 3 में। फिर जो यूरोपोर्फिरिनोजन 3 है उसमें से 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो रिलीज़ होंगे, यानी यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो जो एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है यूरोपोर्फिरिनोजन डीकार्बोक्सिलेज, और जो एसीटेट ग्रुप है वो एक फंक्शनल ग्रुप है। तो जब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो ये मेथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5 सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9 PPG9। फिर कोपोर्फिरिनोजन 3 जो है वो प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन होगी और साथ में ऑक्सीडेशन भी, दोनों होंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपियोनिक एसिड की साइड रिएक्शन में जब हम देखें तो ऑक्सीडेशन होगी, और फिर इसी ऑक्सीडेशन की वजह से डीकार्बोक्सिलेशन शुरू हो जाती है, और प्रोपियोनिक एसिड जो है वो विनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीडेशन के लिए हमें NADP और साथ में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। एंड द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 6 सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोर्फिरिन 9। प्रोटोपोर्फिरिनोजन 9 ने प्रोटोपोर्फिरिन में कन्वर्ट हो जाना है अब, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। और मिथाइलिन ब्रिजेस की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर मिथाइल ब्रिज में ये कन्वर्ट हो जाएगा और कलर पार्फिन्स बन जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 7 लास्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ हीम। लास्ट स्टेप में 4 रिंग्स में आयरन ने इनकॉर्पोरेट होना है। आयरन ने यहाँ पर फीरस फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होना होता है, +2 फॉर्म में, और फिर इसकी जब इनकॉर्पोरेशन के बाद प्रोटोपोर्फिरिन 9 ने फाइनली प्रॉपर हीम में कन्वर्ट हो जाना होता है। और जो आयरन एटम है इसमें 5 N एटम है, तो ये इनसे मिलकर बनता है 4 टेट्रापायरल रिंग्स बनेंगी यहाँ पर, और 1 N हिस्टाडीन से जो आएगा वो ग्लोबिन से बचा होगा। और आगे है रेगुलेशन ऑफ हीम सिंथेसिस। सो ALA सिंथेसिस, तो ALA सिंथेसिस रेट लिमिटिंग स्टेप है जिसे हीम इनहिबिट करती है और कोरिप्रेसर के तौर पर ये एक्ट करती है। मतलब अगर ये ज़्यादा होगी तो हीम की फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देगी। और ALA सिंथेसिस के पास जो है ना 2 आइसोएंजाइम होते हैं, एरेथ्रॉइड और दूसरा नॉन एरेथ्रॉइड। और जो एरेथ्रॉइड ALA सिंथेसिस जीन है वो हीम से रिप्रेस मीन्स रिटेन नहीं हो पाता। So next heading is ALA synthesis is also allosteric inhibited by hematin। हेमेटिन हमने पहले भी देखा, हेमेटिन जो है वो फीरस से फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ALA की शिफ्टिंग को ये अफेक्ट करेगा। पहले हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये सिंथेसाइज हो रहा होता है, ठीक है, और उसके बाद ये फिर साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी शिफ्टिंग की वजह से ना हेमेटिन पर अफेक्ट होता है और फिर वो एरोस्टेरिकली इनहिबिट हो जाता है। आगे है हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन। हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है ALA सिंथेसिस की इंडक्शन को प्रिवेंट करता है। जब
ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई हो जाती है ना, तो हीम सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और आगे हीम सिंथेसिस जो है वो रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस से भी कंट्रोल रहती है। आगे बार्बिचुरेट्स, बेसिकली ये हीम सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। तो जब ड्रग मेटाबॉलिज्म इंड्यूस होगी तो साइटोक्रोम P450 फॉर्मेशन भी इंड्यूस हो जाएगी। तो साइटोक्रोम P450 की ये जब इंड्यूस होगा तो हीम सिंथेसिस को भी ये इंड्यूस कर देगा। आगे है लेड जो है ना वो ALAD डिहाइड्रेटेज, ये इसको इनहिबिट करता है और फिर इसमें हीम सिंथेसिस भी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन INH जो है वो एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर है विटामिन B6 का। और जो विटामिन B6 है ना, उसमें जो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट है जो कि ALA सिंथेसिस का कोएंजाइम भी है। तो पैराडॉक्सिल फॉस्फेट का लेवल जब डिक्रीज होगा तो उसे हीम सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आ गया पोरफायरियाज, डिसऑर्डर्स ऑफ हीम सिंथेसिस। अगर हीम सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर उसके एंजाइम में कोई इफेक्ट हो जाता है तो इसको कहते हैं पोरफायरिया। तो इसकी आगे 3 कैटेगरीज हैं, हेपेटिक पोरफायरिया, एरिथ्रोपायोटिक और पोरफायरिया विथ बोथ एरिथ्रोपायोटिक एंड हेपेटिक। तो अगर लीवर में कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसकी वजह से एंजाइम में कोई मसला आ जाता है तो उसको कहते हैं हेपेटिक। और इसी तरह अगर बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसको कहते हैं एरिथ्रोपायोटिक पोरफायरिया। आगे जो है ग्लाइसिन प्लस सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए, इससे इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रहा है ALA सिंथेसिस और आगे ये कन्वर्ट होता है डेल्टा अमाइनो लिवोलेनिक एसिड में। तो इसका भी कोई भी पोरफायरिया नहीं है। आगे ये कन्वर्ट हो जाता है पोरफायरोबिलेनोजन में। तो इसमें जो एंजाइम है वो ALA डिहाइड्रेटेज है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है अल्फा ALA डिहाइड्रेटेज पोरफायरिया हो जाता है। और आगे ये पोरफायरोबिलेनोजन जो है वो कन्वर्ट होता है यू पोरफिरेनोजन में। तो इसमें जो जो है ना 2 एंजाइम आएंगे, PPG डीअमाइनेज और UPG2 को सिंथेसिस। तो PPG डीअमाइनेज की डेफिशिएंसी की वजह से जो है एक्यूट इंटरमिनेंट पोरफेरिया हो सकता है और UPG2 को सिंथेसिस की वजह से कॉन्जिटन एरिथ्रोपायोटिक पोरफेरिया हो सकता है। आगे ये कन्वर्ट होगा यूरोपोरफिनोजन कोपोरफिनोजन में। तो इसमें जो एंजाइम है वो होगा UPG डीकार्बोक्सिलेज। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है पोरफेरिया क्यूटेनिया टार्डा हो सकता है। आगे कोपोरफिनोजन में कन्वर्ट होना होता है प्रोटोपोरफिनोजन में। तो इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है CPG ऑक्सीडेज और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेरिडिटरी कोपोरफेरिया हो रहा होता है। और आगे फिर प्रोटोपोरफिनोजन में कन्वर्ट होना है प्रोटोपोरफेरिया में। तो इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है PPG ऑक्सीडेज और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है पोरफेरिया वेरिगेटा हो सकता है। फिर आगे प्रोटोपोरफेरिया ने कन्वर्ट होना है फाइनली हीम में। सो इसका जो एंजाइम है वो है हीम सिंथेसिस, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एरिथ्रोपायोटिक प्रोटोपोरफेरिया हो सकता है। अब हम बात करेंगे हीम कैटाबॉलिज्म के बारे में। इस हीम कैटाबॉलिज्म में जो फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ बाइलोरुबिन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम कैटाबॉलिज्म आर बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स जो हैं वो एंड प्रोडक्ट हैं हीम कैटाबॉलिज्म की। ओल्ड RBCs लिबरेट्स हीमोग्लोबिन। ओल्ड RBCs लिबरेट करते हैं हीमोग्लोबिन को। फ्रॉम हीमोग्लोबिन आयरन इज रीयूटिलाइज्ड, ग्लोबुलिन इज हाइड्रोलाइज्ड टू अमाइनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन से जो आयरन होता है उसको रीयूटिलाइज कर लिया जाता है। जो ग्लोबिन जो कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में। द पोरफिरिन रिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू रेटिकुलो endothelial cells of liver, spleen and bone marrow to the bile pigments. पोरफ्रीन रिंग कन्वर्ट हो जाती है बाइल पिगमेंट्स में लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में। लीवर में स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, जो कन्वर्ट करते हैं पोरफ्रीन रिंग को बाइल पिगमेंट्स में। Approximately 35 mg of bilirubin is formed from 1 gram of hemoglobin. 35 mg ऑफ बिलोरुबिन जो है वो बनता है 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन से।
नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ बिलोरुबिन टू लीवर. Liver plays vital role in the disposal of bilirubin. The lipophilic bilirubin transfer to in plasma bound to albumin. लीवर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्पोजल ऑफ बाइलोरुबिन में, और जो बिलोरुबिन है ये लाइपोफिलिक होता है नेचर में, और इसे ट्रांसफ़र किया जाता है प्लाज्मा में ताकि वहाँ पर ये एल्ब्यूमिन के साथ बाउंड हो सके. वन मोलिक्यूल ऑफ एल्ब्यूमिन कैन टेक टू मोलिक्यूल ऑफ बिलिरुबिन. एक मोलिक्यूल एल्ब्यूमिन का जो है वो अटैच हो सकता है दो मोलिक्यूल ऑफ बिलिरुबिन में के साथ. कॉन्जुगेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास. थर्ड स्टेप जो है हिम कैटाबॉलिज्म का इज कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन विद ग्लूकोरोनिक एसिड इन लीवर. Inside liver cells, bilirubin is conjugated to glucuronic acid and becomes water soluble. बिलोरोबिन जब ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट हो जाता है तो ये वाटर सोल्यूबल बन जाता है. इजीली सोल्यूबल होता है इन वाटर में, और ये एक्सक्रीट करने में इजीली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से. ड्रग्स लाइक प्रीमाक्विन, नोवोबायोसिन, क्लोरामफेनिकल एंड एंड्रोजन may interfere this conjugation process and cause jaundice. ये जो ड्रग्स हैं प्रीमाक्विन, नोवाबायोसिन और एंड्रोजन्स वगैरह, ये कॉन्जुगेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं और इसके नतीजे में जॉन्डिस हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन राइज, व्हाट इज जॉन्डिस. जॉन्डिस में बॉडी लाइक आइज का कलर येलो हो जाता है, और इसमें बिलोरोबिन की कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, और ये हेपाटाइटिस की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन ऑफ बिलोरुबिन टू बाइल. द वाटर soluble conjugated bilirubin is excreted into the bile by an active transport. वाटर soluble जो बिलोरुबिन है उसको एक्सक्रीट किया जाता है इनटू बाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए. इसमें ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व हो रही है, तो इसमें हमें एटीपी की ज़रूरत होती है. इसमें एटीपी यूज़ होते हैं. नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास फेट ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन. द कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन रीचेज द इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डीकॉन्जुगेटेड. जो कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है वो इंटेस्टाइन में जाती है, और वहाँ पर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इसे डीकॉन्जुगेट करते हैं. जो द फ्री बिलोरुबिन इज फर्दर रिड्यूस टू द कलरलेस टेट्रापायरोल यूरोबिलिनोजन. जो फ्री बिलोरुबिन है ये रिड्यूस हो जाती है कलरलेस टेट्रापायरोल यूरोबिलिनोजन में, और इसकी फर्दर रिडक्शन ऑफ विनाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑफ यूबीजी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीजोबिलिनोजन एंड स्टेरकोबिलिनोजन. और इसकी फर्दर रिडक्शन जरिए बनता है मीजोबिलिनोजन और स्टेरकोबिलिनोजन. Enterohepatic circulation of bilirubin. 20% of UBG is reabsorbed from intestine to liver by portal blood. 20% जो UBG है वो reabsorb हो जाता है intestine to liver by portal blood. Now what is enterohepatic circulation? Enterohepatic circulation में secretion और absorption होती है, like bile pigments हो गए, urobilinogens हो गया, इनकी from liver to intestine, और वहाँ से इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन बैक टू लीवर. दिस इज एंटेरोहेप्टिक circulation. The UPG is again reactivated by enterohepatic circulation. सेवन स्टेप आ जाता है हमारे पास फाइनल एक्सक्रीशन. UBG and SBG are both colorless compounds but are oxidized to color urobilin and stercobilin by atmospheric oxidation. यूरोबाइलिनोजन एंड स्ट्राकोबाइलिनोजन जो हैं ये कलरलेस कंपाउंड है, लेकिन जब ये एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है कलर्ड कंपाउंड्स में, जो कि यूरोबाइलिन और स्टारकोबाइलिन है. बोथ यूरोबाइलिन एंड स्टारकोबाइलिन आर सेक्रेटेड आउट थ्रू यूरिन एंड फीसिस. यूरोबाइलिन और स्टारकोबाइलिन की एक्सक्रीशन होती है यूरिन और फीसिस के ज़रिए. सो दैट्स ऑल. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.